Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your IT teacher. Today, we will start new chapter, and this chapter has been taken from Unit 3, Information and Communication Technology Skill. It is chapter number 7. The name of this chapter is Introduction to ICT. As I already explained about, the means of IT is information technology, and when other technology is also mixed with IT, like communication technology, so it become ICT. In the previous module we have already discussed about the basic about the ICT, that is information and communication technology. Information technology enable us to preserve the information, and communication technology enable us to transfer the informations, transmission of the informations, and all the activity that is being done in the transmission of information goes under the category of ICT. And if we want to store the information for a long time, we want to create this information, so this will go under the category of information technology. So in this module we will discuss about all this thing in detail. See, the basic definition has written about, that is the introduction of ICT. Technological development has revolutionized our everyday life to a great extent. You can see that today's time and compare this time with the early time. Early there was no mobile phone, earlier there was no television, earlier there was no computer. See how you survive the life at that time, and just make a differentiation between the life at that time when there is no technology and the time which we are now. So you can easily make the differentiation that technology make a lot of things very much easier. To take a real life example, you can see that earlier there was a physical classroom, but now we can see the digital classrooms. So by just sitting at the home, we can easily communicate what exactly we want to communicate. Okay, so that's why that our daily life has been extended a lot. Earlier there was no telephones, so you need to send the letters to your friends to keep in touch. But now you simply make a call, WhatsApps, and many other social medias providing you the services that enable to solve that particular problems. It has led to emerge a new global economy. देखिए the term global economy represent here as a that earlier there was not it was not possible to establish the business in others country because you need to physically present on the other country too. But due to the IT sector's enhancement, you can virtually make your presence in other countries and just expect your business. So that become the global economy because it is just enabling us globalizations. ठीक है, टू मेक यू मोर अंडरस्टैंडेबल जस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे पहले जो तो होता था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो एक कंट्री की किसी भी कंपनी को अगर दूसरी कंट्री की कंपनी में या दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना होता था, तो दे नीड टू फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर। इसके अलावा उनको फिजिकली एम्प्लॉयमेंट्स भी चाहिए होता था, और सारा डेटाबेस मेंटेन करने के लिए भी उनको फिजिकल डेटा का मेंटेनेंस करना पड़ता था। लेकिन क्या है, ड्यू टू द इन्हेंसमेंट ऑफ आईटी, अब वो क्या है, वर्चुअल डेटा वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं, और वो अपनी प्रेजेंस को वर्चुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरास लगा सकते हैं जिससे वो एक्सेस कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे करके आईटी ने जो है वो एक ग्लोबल इंडस्ट्री और ग्लोबल इकोनॉमी को भी इमर्जेंस किया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आर वर्चुअली ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड इनटू द ग्लोबल विलेज। देखिए, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी यू आर बीइंग कनेक्टेड एनी टाइम वेर एवर यू आर सिटिंग, सो इट्स मेक्स अ होल ग्लोब एज अ विलेज। वाई इट इज सेइंग दैट ग्लोब एज अ विलेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप जहाँ चाहें, जिस फ्रेंड से चाहें, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो आप कहीं भी रह रहे हो, यू आर लिविंग इन अमेरिका, यू आर लिविंग इन जापान, एनीवेयर, you can make a good relations with your friend who's living in a small village or anywhere. So all this thing is being possible with the help of technology only. With a one click of the button you can find the informations you want. Okay, one more thing is the availability of the information is very easily available with the help of the technology. तो availability is being maintained by the information technology too. कि अब आप देख सकते हैं पहले, if you want to search or if you want to get the information about any of the topic, what you have to do, you have to research into the library
First you go to the library, seek out the books and then research. But now with the simple click, you simply type the topics in Google and search out the detail about, ठीक है. एंड दैट इज अ ग्लोबल लाइब्रेरी इन योर एक्सेस. पहले क्या था, फिजिकल लाइब्रेरी होती थी, तुम जाते थे वहां पे, एक लिमिटेड बुक्स होती थी, उन बुक्स में से आप स्पेसिफिक पॉइंट को सीक आउट करेंगे एंड उसके बाद आप अपना इंफॉर्मेशंस को समराइज करते थे. अब क्या है, वर्ल्ड लाइब्रेरी इज अवेलेबल इन अ वर्चुअल फॉर्म. वर्ल्ड की ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी और जितनी भी विकीपीडियाज एक्सेट्रा हैं जो आपको प्योरेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एग्जैक्ट है क्या. सो देखिए, आईसीटी इज एन एक्रोनियम्स ऑफ for the information and communication technology, and it is a short form of information and communication technology. It refers to all the devices, देखिए I told about all the devices, देखिए all the devices, networking components, application and system that allow you to organize, to interact in a digital world. दो चीजें हो रही हैं, ऑर्गेनाइज और इंटरेक्शंस. जो चीज़ें ऑर्गेनाइज का सिस्टम को फॉलो अप करने में हेल्प कर रही हैं वो आपके आईटी के सेक्टर में जाएंगे, और जो इंटरेक्शंस यानी कम्युनिकेशंस को इनेबल कर रही हैं वो सीटी की कैटेगरी में जाएंगी. और कुछ ऐसी डिवाइस जो दोनों काम कराते हैं वो आईसीटी की कैटेगरी में जाती है. तो सारी की सारी एप्लीकेशंस, सारी की सारी डिवाइसेस, सारे के सारे नेटवर्क कंपोनेंट्स, दीज ऑल थिंग्स विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ आईसीटी. आईसीटी comprises all the communication technology. अब देखिए सबसे important बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट. अब हाउ द इंटरनेट विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ आईसीटी. सी, what first you research that what exactly you can do with the help of the internet, then you understand. देखिए मैंने आपको बोला आईटी मतलब आप प्रिजर्व कर रहे हो इंफॉर्मेशन को बना रहे हो, ठीक है. और सीटी मतलब आप इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर रहे हो. तो क्या हम किसी फाइल को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बना सकते हैं? क्या हम किसी फाइल को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट स्टोर कर सकते हैं? लॉट ऑफ क्लाउड स्टोरेज इज अवेलेबल. इसके अलावा आपको जितनी भी सर्चिंग इंफॉर्मेशन होती है वो सब आपकी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है. तो इट मींस वी कैन इजीली सर्च द थिंग ऑन इंटरनेट. तो ये आईटी का एग्जांपल हो गया. इसके अलावा इफ वी वांट टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू शेयर योर व्यूज और एनीथिंग एल्स, सो यू नीड द इंटरनेट टू. तो इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आईसीटी बिकॉज इट इनेबल अस टू डू ऑल द टाइप्स ऑफ टास्क, ठीक है. इसके अलावा मोबाइल फोन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, वायरलेस नेटवर्क, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, बिकॉज दे एनेबल अस टू सर्च एज वेल एज कम्युनिकेट, ठीक है. अब आइए रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी. अब हम वी अंडरस्टूड दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीन्स ऑफ आईसीटी, हमें समझ आ गया कैसे आईसीटी ने पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, दैट वी इट्स क्लियर. अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी. देखिए बिना इम्पोर्टेंस जाने हमें किसी भी चीज को समझना एक यूजलेस लगता है. तो फर्स्ट वी विल थिंक दैट वेयर द आईसीटी इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी. देखिए एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली रूटीन्स हैज ऑल्टरेटेड विद द एडवांस्ड advent with of ICT. It helps to improve the quality of our life by giving us a easy access of information as well as the large number of products and services. देखिए the line is saying, and this line if we interpreted this line, so it means that ICT help us to access the easy availability of the information as well as the number of product and services. With the help of the ICT हम प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं और हम बहुत सारी सर्विसेज को ले भी सकते हैं. ICT has transformed the way we live and the way we work. आईसीटी ने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, यानी अर्लियर टाइम वी लिव विद अ डिफरेंट वे, अब नाउ विद द हेल्प ऑफ आईसीटी वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट वे. आप देख सकते हो आपकी वर्चुअल फ्रेंडशिप्स बढ़ गई हैं. पहले आपके फिजिकल फ्रेंड्स होते थे ओनली. वर्चुअल मैसेजिंग बढ़ गई है, वर्चुअल सर्चिंग बढ़ गई है. लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकल से वर्चुअल की तरफ कन्वर्ट होती ही चली जा रही है. तो दिस इज ड्यू टू द यूज ऑफ आईसीटी. कैसे हम रहते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं, जैसे आप देख सकते हो ड्यू टू दिस पेंडेमिक वी कैन सी दैट हाउ द टीचर्स इज डीलिंग विद दैट पेंडेमिक. तो वी आर यूजिंग आईटी यानी आईसीटी का हम एग्जांपल मोबाइल्स का यूज़ कर रहे हैं. तो जो हम पहले क्लासरूम में पढ़ाते थे, तो राइट नाउ वी आर जस्ट वर्किंग एंड जस्ट टीचिंग यू विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन. सो इट चेंज्ड आवर वर्किंग.
यानी आईसीटी ने हमारे वर्किंग को भी बदल दिया है। ठीक है, द नेक्स्ट देखिए, एंड द वे वी कंडक्ट द बिजनेस, हर एक जगह पर आपको आईसीटी का इफेक्ट नजर आएगा। पहले जैसे हम जीते थे, जो हमारी जीने वाली लाइफ थी, तो आज कहीं ना कहीं पर हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होंगे अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए। सेकेंड की हम जैसा काम करते थे, तो आजकल आप भी देख लीजिए, बीइंग अ टीचर, आई जस्ट टेलिंग यू अबाउट दैट वाज before this pandemic I just teaching in the classroom, but right now we are just teaching with the help of this video and other things. So this is possible due to the ICT only. इसके अलावा आप बिजनेस का मॉडल देख लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स सिस्टम इज striking topics nowadays. ठीक है, क्योंकि most of the peoples wants to establish their digital markets business, so this is possible due to the ICT only. And the way we communicate with each other, देखिए earlier we need to communicate, then we need to visit to the person, or we simply write the letter. अगर हमें किसी से बात करनी होती थी, किसी दोस्त के हाय हेलो करनी है, ठीक है, उसके बारे में कुछ जानना है, तो हमें उसके को लेटर लिखना पड़ता था, नहीं तो मुझे उससे मिलना पड़ता था। अब नाउ यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ टुडेज लाइफ, सिंपली गेट अ फोन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड मेक अ कॉल, और वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उससे चैट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल्स ऑफ आईसीटी। And now further topics we will discuss the role of ICT in different categories और different sectors। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आईसीटी की कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं और उनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। सी, आईसीटी इन वर्क प्लेस। अब आप वर्क प्लेस की अगर बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, ठीक है, तो उन सब में आईसीटी का कैसे यूज हो रहा था। देखिए, द वर्ल्ड वाइड वेब हैज मेड अ पॉसिबल search for information of varied issues such as education, health and nutrition, current affairs, social aspect, finance, and many others issues, and which help us to improve an industrial life। देखिए, सबसे पहले www जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसने क्या किया है, सारी इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन करके एक ग्रुप बना दिया है, और वी कैन easily search about the information about anything that is current affairs, social aspect, finance or any information. The ITC is very useful in a workplace to use the robot and artificial intelligence in manufacturing of the product। देखिए, अब सबसे पहले वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जहाँ पर आईसीटी का क्या यूज़ है, या ऐसे प्लेसेस जहाँ पर रोबोट इंडस्ट्रीज है उनमें क्या है। तो देखिए, कुछ वर्क प्लेस की बात की गई है और उन वर्क प्लेस में कहाँ पर आईसीटी कैसे यूजफुल है, दैट विल डिस्कस। देखिए, द फर्स्ट है द माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ ICT is used in other workplace like mining industries for prospecting। देखिए, जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है उनमें प्रोस्पेक्टिंग के पर्पस के लिए आईसीटी का यूज़ किया जाता है। ऑटो इंडस्ट्रीज एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर रिसर्च, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग एज वेल एज फॉल्ट डायग्नोजिंग, सेफ्टी टेस्टिंग एंड सिमुलेशंस। ठीक है, तो जो ऑटो इंडस्ट्रीज हैं या आपका एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, आप देख सकते हो उनमें बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर इनेबल्ड होती हैं, कंप्यूटर से ऑपरेटेड होती हैं। आप ये मान लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्रीज में टेस्टिंग वाली डिवाइस या जितनी भी ऐसी डिवाइस हो रही हैं जो कंप्यूटर डिवाइस या डिजिटल डिवाइस की कैटेगरी में जाएंगी, वो सब आईसीटी के एग्जांपल्स हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका सपोज ईसीजी मशीन को यूज़ करता है, वो आईसीटी का एग्जांपल है। वो एक्सरे करता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आईसीटी। तो ऑलमोस्ट डिजिटल मशीन्स दैट इज वर्क ऑन अ डिजिटल डेटा एंड डीलिंग विद द ऑल दिस थिंग्स इज गोज अंडर दिस कैटेगरीज। ठीक है, जैसे पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट्स में क्या है, फॉर द पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आईसीटी की पूरा किट लगी होती है जो एनालॉग होती है। ठीक है, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशंस हैं, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है वो तो पूरा ही आईसीटी का, उसमें बिल्डिंग और नेटवर्क को मेंटेनेंस करने के लिए जो उनके टावर लगे होते हैं वो। उसके बाद फाइनेंस एनर्जीज हैज लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ कंपनीज इन मार्केटिंग ओवर द वर्ल्ड एंड विच हेल्प देमसेल्फ टू एनालाइज एंड प्रोडक्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड। जो फाइनेंस इंडस्ट्रीज हैं या आपकी जो फाइनेंस एजेंसीज हैं, वो जितना भी डेटाबेस मेंटेनेंस करती हैं अपना, वो सब कंप्यूटर्स में करती हैं। इसके अलावा वो जितने भी चार्ट्स बनाती हैं, प्रेजेंटेशंस बनाती हैं, वो सब आपका क्या है, आईसीटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस द यूज़ ऑफ द आईसीटी इन ए डिफरेंट सेक्टर्स वन बाय वन। जैसे अब हम पहले देख लेते हैं आईसीटी इन एजुकेशन। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज ऑलरेडी अवेयर्ड अबाउट यू, यू आर बीइंग अवेयर अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो उसमें देखिए, जैसे पहली चीज़ ये है कि हम आईसीटी का एजुकेशन में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आप स्मॉलेस्ट थिंग से चलिए, जैसे एक स्मॉल बुक प्रिंटिंग से लेकर आज के टाइम की जूम क्लासेस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस है, उन सब का एजुकेशन में आईसीटी का यूज़ है। आप देख सकते हैं
बच्चों को जो ऑनलाइन देखिए, आईसीटी कैन बी इफेक्टिवली यूज टू डेवलप द कंटेंट एंड कंटेंट क्लासरूम ट्रेनिंग्स थ्रू वीडियोस, एक्सपर्ट लेक्चर्स एंड अदर सच टूल्स। टीवी चैनल्स जैसे चलते हैं जिसमें आपके वीडियोस वगैरह दिखाए जाते हैं बच्चों के टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा वेबसाइट्स हैं बहुत सी जो आपको एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस हैं जैसे जूम है, गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है। ठीक है, ये सब जो है वो आईसीटी के एग्जांपल हैं जो हमें कंटेंट को क्रिएट करने की भी फैसिलिटीज़ देते हैं, और इसके अलावा हम कंटेंट को डिलीवर भी कर सकते हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट लाइव टू रिमोटिंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नाउ अ डे द सेवरल एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं। जैसे अभी देख लो, हमारा इंस्टीट्यूशन देख लो। अब देखिए, आईसीटी जो है वो क्या क्या है। स्टूडेंट टीचर हैज़ एक्सेस टू वाइड एक्सपेंस ऑफ नॉलेज एंड वेस्ट। आईसीटी की वजह से क्या है, पहले क्या होता था, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होती थी। अब ड्यू टू द इन्हेंसमेंट इन आईसीटी वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के बारे में गूगल से इजीली सर्च करके इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन डेवलप द रिसर्च स्किल इन इंगेज। आप देख सकते हो कुछ वेबसाइट एज अ वाइट हैट हैकर है, जूनियर। तो इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको स्किल्ड डेवलपमेंट सिखाते हैं। तो विद द वेरी स्मॉल एज यू कैन बी अ गुड स्किल डेवलपर। इसके अलावा टीचर्स आर एबल टू कोलैबोरेट एंड शेयर द आइडियाज़ एंड रिसोर्स ऑनलाइन। तो जो रिसोर्सेज हैं या जो आइडियाज़ हैं हमारे, उनको हम ऑनलाइन भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो अभी हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं या अदर प्लेसेस पे वीडियोस को ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो in the next video we'll discuss about the further portion. Thank you very much.